Then preparation of aldehyde ketone. All three way, that is method for preparation of aldehyde ketone both, method for preparation of aldehyde only, method for preparation of ketone only. All these are over. Then after physical properties, then after chemical properties. In chemical properties, nucleophilic addition reaction is over, reduction is over, oxidation is over. Now we need to discuss haloform reaction and reaction due to alpha hydrogen. So nucleophilic addition reaction mechanism, then addition of HCN, addition of NaHSO3, addition of alcohol, then addition of ammonia and its derivatives. Then next, reduction, two-way, reduce to form alcohol or reduce to form alkane. Reduce to form alcohol is over. Then after reduce to form alkane by two method, Clemmensen reduction, Volk-Kishner reduction. Then after oxidation by strong oxidizing agent, by mild oxidizing agent, by strong oxidizing agent, the difference and the product is over. Then by mild oxidizing agent, tolerant test and failing test is over. Now anyone please unmute and tell me, is screen and voice both are clear or any problem is there? So I can start the class. Yes, sir. Okay, thank you. Now we are going to discuss the fourth main property. Fourth main property. First, nucleophilic addition reaction is over. Second, reduction is over. Third, oxidation is over. Now we are going to discuss the haloform reaction. Reaction name is haloform reaction because it form haloform. इसमें प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है? हैलोफॉर्म. हैलोफॉर्म मीन्स CHX3. CHX3. This is called haloform. CHX3. This is called haloform. If at the place of X, Cl will be there, then it forms CHCl3. That you know, chloroform. If at the place of X will be there Br, then it forms CHBr3. That is bromoform. If at the place of X Cl will be there, then it form, sorry, I will be there, then it form iodoform. Okay, so three are there in haloform reaction, but in your syllabus only iodoform is given. That's why it is known as iodoform test. Iodoform test. This is very important reaction, very important test for distinguishment. So haloform reaction because the product is haloform. इसमें जो product बनेगा वो haloform बनेगा. अगर Cl रहेगा तो chloroform, Br रहेगा bromoform, I रहेगा iodoform. But in your syllabus iodoform is given. That's why it is called iodoform test. Haloform reaction or iodoform test. So first, पहला information. This reaction is only given by those aldehyde और कीटोन. ये रिएक्शन केवल वही एल्डिहाइड या कीटोन देता है विच इज हैविंग मेथिल कार्बोनिल ग्रुप. दिस इज कॉल्ड मेथिल कार्बोनिल ग्रुप CH3CO. This reaction is only and only given by those aldehyde or ketone which is having methyl carbonyl group. Methyl carbonyl group. One methyl group linked to carbonyl carbon atom. कार्बोनिल के कार्बन एटम से एक मेथिल ग्रुप अटैच हो. Only those compound will give this reaction. केवल यही कंपाउंड रिएक्शन आयोडोफॉर्म या हैलोफॉर्म देंगे. रेस्ट अदर विल नॉट गिव द रिएक्शन. बाकी कोई भी ये रिएक्शन नहीं देगा. ठीक है, पहला इंफॉर्मेशन. दिस रिएक्शन इज ओनली गिवन बाय दोज एल्डिहाइड और कीटोन व्हिच आर हैविंग मेथिल कार्बोनिल ग्रुप, जिनके पास मेथिल कार्बोनिल ग्रुप होता है. एंड इन दिस रिएक्शन दिस मेथिल ग्रुप व्हिच अटैच विथ कार्बोनिल, यही मेथिल ग्रुप जो कार्बोनिल से अटैच है,
दिस मेथिल ग्रुप विच अटैच विथ कार्बोनिल, इसके आगे चाहे कुछ भी हो, नो मैटर, इसके आगे क्या है नहीं मतलब है, सीओ के एक साइड या तो फर्स्ट में या तो लास्ट में एक साइड एक CH3 अटैच है, that aldehyde or ketone which are having methyl carbonyl group, only that aldehyde or ketone will give this reaction. In this reaction the methyl group which is attached with कार्बोनिल ग्रुप, मेथिल ग्रुप जो कार्बोनिल ग्रुप से अटैच है, ये मेथिल ग्रुप जो कार्बोनिल ग्रुप से अटैच है, दिस मेथिल ग्रुप विल बी कन्वर्ट इनटू हैलो फॉर्म, यही मेथिल ग्रुप हैलो फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये मेथिल ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और हैलो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अनदर इंफॉर्मेशन, इन एल्डिहाइड, इन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की अगर बात करें, इन एल्डिहाइड ओनली इथेन, केवल इथेनल ही ये रिएक्शन देता है, मिथेनल नॉट गिव दिस रिएक्शन, क्योंकि उसमें फार्मूला होता है HCH, CH3 है ही नहीं। प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, इन सब में फार्मूला आपका हो जाएगा, जैसे प्रोपेनल हो गया CH3CH2C डबल बॉन्ड O, तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप से मेथिल ग्रुप नहीं आएगा, CH2 अटैच होगा, ठीक है, मेथिलीन ग्रुप, सो मेथिल ग्रुप हमको चाहिए, सो ओनली एल्डिहाइड में, ओनली मींस एलिफैटिक एल्डिहाइड में ओनली इथेनल विल गिव दिस रिएक्शन, केवल इथेनल ही ये रिएक्शन देगा, मिथेनल, प्रोपेनल, पेंटेनल, ब्यूटेनल ये सब ये रिएक्शन नहीं देंगे। एंड इन कीटोन, अगर कीटोन की बात करें, इन कीटोन only those ketone will give this reaction which will have 2 on, जिसमें कीटोन ग्रुप सेकेंड नंबर पर हो, ठीक है, those ketone will give this reaction in which the ketone group will be present at second position, means उनके IUPAC नेम में 2 on आए, जस्ट फर्स्ट कार्बन के बाद सेकेंड कार्बन कीटोन ग्रुप हो, ओनली दैट कीटोन विल गिव दिस रिएक्शन, बाकी 3 ऑन हो जाएगा, 4 ऑन हो जाएगा, तो वो ये रिएक्शन नहीं देगा। आई एम सेइंग अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, कि आपके सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। नाउ अनदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, सम ऑफ द एल्कोहल आर आल्सो गिविंग दिस रिएक्शन, आपके बुक में ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि एल्कोहल भी, ठीक है, एल्कोहल भी ये रिएक्शन देते हैं, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि एल्कोहल्स आर नॉट गिव दिस टेस्ट, दैट हैलोफॉर्म टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट डायरेक्टली, एल्कोहल ये हैलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म टेस्ट डायरेक्ट नहीं देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एल्कोहल विल बी अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म एल्डिहाइड, पहले ये एल्कोहल क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे, ठीक है, और वो एल्डिहाइड फिर जाकर के एल्डिहाइड या कीटोन जो भी बनाएंगे, फिर वो एल्डिहाइड या कीटोन अगर मेथिल कार्बोनिल ग्रुप वाला होगा तो वो ये टेस्ट देगा। मीन्स आई वांट टू से कि इन योर सिलेबस, इन योर एनसीईआरटी बुक इट इज रिटन कि दिस रिएक्शन इज गिवन बाय, means haloform test or aldoform test is given by those aldehyde, ketone or alcohol which are having methyl carbonyl group, जिनके पास मेथिल कार्बोनिल ग्रुप, या तो ऐसी कंडीशन है इनके फार्मूले में ये आए, आइदर CH3C आए या CH3CHOH आए, बिकॉज दिस CHOH कैन बी कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड O, ये CHOH हाइड्रोजन रिलीज करके ऑक्सीडेशन से C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, सो C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा। सो ओनली दोज एल्कोहल विल गिव दिस टेस्ट, ठीक है, इन विच दिस पार्ट विल बी प्रेजेंट, CH3CHOH या स्टार्ट में या लास्ट में, बट दैट एल्कोहल विल नॉट गिव दिस टेस्ट डायरेक्ट, डायरेक्ट वो एल्कोहल ये टेस्ट नहीं देगा, ये टेस्ट केवल एल्डिहाइड कीटोन ही देता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड और कीटोन, पहले ये एल्कोहल
एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होगा और उसके बाद तब आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। डायरेक्ट एल्कोहल ये टेस्ट नहीं देता, पहला इंफॉर्मेशन ये भी याद रखिएगा। ये नहीं कि एल्कोहल भी देता है, हाँ एल्कोहल देता है बट एल्कोहल डायरेक्ट नहीं देता है। एंड ओनली दोज एल्कोहल विच आर हैविंग CH3 CHOH कंडीशन। नाउ अनदर इंफॉर्मेशन इन दिस, इस प्रोसेस में दोज एल्डिहाइड और कीटोन विच आर हैविंग methyl carbonyl group, they are going to be heated with, ठीक है, X2 हाइड्रोजन एंड NaOH। ये किसके साथ हीट किए जाते हैं? हीट करना है। ये भी आपका लैब मेथड है, लैब में ये भी आप यूज करेंगे। सो इन दिस रिएक्शन, इन दिस टेस्ट, द मेथिल कार्बोनिल containing aldehyde or ketone heated with X2 and NaOH, X2 और NaOH से रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले ये X2 और NaOH आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं NaOX, सोडियम हाइपोहैलाइट, सोडियम हाइपोहैलाइट। ठीक है, सो कहीं कहीं पे रिएक्शन में X2NaOH लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे NaOX लिखा रहेगा। X2NaOH और कहीं कहीं पे NaOX, दोनों का एक ही मतलब है। फिर से ध्यान से समझिए। अगर मैं आपको फिर से इंफॉर्मेशन देना चाहूँ तो रिएक्शन में होता क्या है, जो मेथिल कार्बोनिल ग्रुप वाला एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसको दिखाया जाएगा X2 और NaOH के साथ हीट करेंगे, NaOH के साथ हीट करेंगे। NaOH इसके साथ हीट करते हैं 2-4-5 मिनट तक। सो रिएक्शन ऐसे भी लिखा रहेगा, लेकिन इस रिएक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल X2 एंड NaOH आर रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म NaOX। पहले ये NaOX बनाता है, Cl रहेगा, Br रहेगा या I रहेगा, सोडियम हाइपोहैलाइट, सोडियम हाइपोहैलाइट, हाइपोक्लोराइट, हाइपोब्रोमाइट, हाइपोआयोडाइड। नाउ तो रिएक्शन ऐसे भी लिख सकता है CH3CO प्लस, मतलब मेथिल कार्बोनिल कंटेनिंग एल्डिहाइड कीटोन और NaOX, ये भी लिख सकता है। तो NaOX लिखेगा तब भी मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट है, और X2NaOH लिखा तब भी आयोडोफॉर्म टेस्ट है। X में भी Cl, Br और I कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके में I है तो आप यहाँ मान के चलिए कि NaOI देगा। ठीक है, और यहाँ पे I2 यूज करेंगे। देन होता क्या, आपको क्या बताया गया था कि मेथिल ग्रुप विच अटैच, जो मेथिल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप से अटैच होता है, दैट मेथिल विल कन्वर्ट इनटू आयोडोफॉर्म। यही मेथिल आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट होगा, मतलब बनाएगा CHI3। यही मेथिल ग्रुप CH3 जो है, ये आयोडीन से रिएक्ट करके यहाँ पे इसके बाद इसके X वाले पार्ट से रिएक्ट करके मेथिल ग्रुप बनाएगा CHI3, दैट इज आयोडोफॉर्म, क्योंकि आपके में आयोडोफॉर्म टेस्ट है। हेलोफॉर्म लिखना चाहते हैं तो X3 लिख देंगे। ठीक है, दिस आयोडोफॉर्म विल बी इन येलो पीपीटी फॉर्म। ये आयोडोफॉर्म किस फॉर्म में बनेगा? येलो पीपीटी के फॉर्म में, येलो पीपीटी। और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे X निकल गया तो क्या बचा? ONA। बाकी बचा हुआ पार्ट ONA के साथ अटैच हो जाएगा और बना देगा RCHOONA। ONA आकर के इसमें क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा।
आर, आर या एच कोई एक रहेगा, और COONA। ठीक है, सोडियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। फिर से देखिए, ये मेथिल कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कीटोन है। NaOX लिखिए, या X2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। यहाँ पे I2 एंड प्लस NaOH भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपके में आयोडो फॉर्म है। सो व्हाट विल बी हैपन, जैसा यहाँ बता रहा है, मेथिल ग्रुप जो अटैच होता है कार्बोनिल ग्रुप से, दिस मेथिल ग्रुप विल बी कन्वर्ट इनटू आयोडो फॉर्म। यहाँ पे ये फार्मूला गलत है। हेलो फॉर्म का फार्मूला ये नहीं होता है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर राइटिंग दिस CH3X, उसमें CH3 में X जोड़ देते हैं। नो, फार्मूला विल बी CHX3, and if you have taken I, then formula will be CHI3, क्योंकि आपके में आयोडो फॉर्म है, इसलिए CHI3 बतला रहे हैं। डोंट राइट दिस फार्मूला, अगेन आई एम सेइंग, जहां जहां मिस्टेक हो सकता है वहां वहां मैं बतला दे रहा हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट आपके क्लास में भी इतना बताने के बाद भी देखिएगा 90% लोग यही लिखते हैं CH3X, बट द फॉर्मूला इज CHX3। CHX3 हेलो फॉर्म। नहीं याद आए, क्लोरोफॉर्म याद कर लीजिए। क्लोरोफॉर्म CHCl3, तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा CHBr3, आयोडोफॉर्म हो जाएगा CHI3, बट मैक्सिमम लोग CH3I लिखते हैं। सो रिमेंबर दिस। एंड अब आपका बचा क्या, चेक करिए। CH3 यहाँ से चला गया तो ये बचा, और यहाँ पे NaO बचा। दिस NaO कम्स इन कंबाइन हियर, सो RCO ये हो गया, ONA इसमें कंबाइन हो गया, दैट इज सोडियम कार्बोक्सिलेट। सोडियम कार्बोक्सिलेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज रॉन्ग, रिमेंबर दिस, डोंट राइट CH3X। ठीक है, CHI3 CHX3। नाउ सो haloform test or iodoform test, you will say this test is only and only given by those aldehyde and ketone which are having methyl carbonyl group, means one methyl group attached with the carbon of carbonyl atom, carbonyl group, or the alcohol which having the formula CH3CHOH. In this test, when the methyl carbonyl containing aldehyde or ketone or alcohols containing CH3CHOH heated with X2 and NaOH, I2 and NaOH, then it form haloform और आयोडोफॉर्म। ठीक है, हेलोफॉर्म और आयोडोफॉर्म एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। इन दिस रिएक्शन द मेथिल ग्रुप विच अटैच विथ कार्बोनिल कार्बन एटम दैट इज कन्वर्ट इनटू हेलोफॉर्म, वही हेलोफॉर्म में कन्वर्ट होता है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। ठीक है, डबल बॉन्ड प्रेजेंस होने से ये रिएक्शन नहीं होता है, रिमेंबर दिस, ये याद रखिएगा। एंड दिस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिस्टिंग्विशमेंट। बाय दिस टेस्ट जहां पे भी आपको डिस्टिंग्विश करना होगा एल्डिहाइड एल्डिहाइड के बीच में, कि दो एल्डिहाइड दे दिए डिस्टिंग्विश करना है, या दो कीटोन दे दिए डिस्टिंग्विश करना है, अगर दोनों कीटोन है, सो जहां दोनों एल्डिहाइड दिया होगा, जहां दोनों कीटोन दिया होगा, वहां 100% है आयोडोफॉर्म टेस्ट ही यूज होगा, कोई और टेस्ट नहीं। आपको चेक करना होगा, यू नीड टू चेक देयर, one of the aldehyde or ketone will have the methyl carbonyl group, another of the aldehyde or ketone will have
नो मेथिल कार्बोनिल ग्रुप, एक में उनमें से मेथिल कार्बोनिल ग्रुप होगा, दूसरे में नहीं होगा। तो जिसमें होगा वो ये टेस्ट दे के प्रोडक्ट बनाएगा, पीपीटी बनाएगा, जिसमें नहीं होगा वो ये टेस्ट नहीं देगा, पीपीटी नहीं बनाएगा। सो दैट वी विल डिस्कस इन डिस्टिंग्विश पार्ट। ठीक है, सो ये हो गया हमारा आयोडोफॉर्म और हैलोफॉर्म। क्या क्या इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, reaction due to alpha hydrogen. So reaction due to alpha hydrogen, there are two reaction. One is aldol condensation and second is Cannizzaro reaction. पहला इंफॉर्मेशन, अल्फा हाइड्रोजन किस क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर यानी हैलो एल्केन हैलो एरेन में पढ़ चुके हैं कि दैट कार्बन at which main functional group is attached, that is called alpha carbon, and hydrogen present at that carbon, that is called alpha hydrogen. So इस अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहा है। So those aldehyde or ketone which are having alpha hydrogen, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, they will give the aldol condensation test, this aldol condensation reaction. And those aldehyde or ketone which are not having alpha hydrogen, they will give the Cannizzaro reaction. Remember this, those aldehyde or ketone which are having alpha hydrogen, they will give the reaction aldol condensation. And those aldehyde and ketone which are not having alpha hydrogen, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, they will give the Cannizzaro test, यानी Cannizzaro reaction. Means you can say कि this reaction can also be used to identify that the aldehyde or ketone is having alpha hydrogen or not. If alpha hydrogen will be there, then that will give the aldol condensation, not Cannizzaro reaction. And that which will not have alpha hydrogen, that will give the Cannizzaro reaction, not aldol condensation. तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि एल्डोल कंडेंसेशन वो देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, कैनिजारो रिएक्शन वो देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एंड बोथ द रिएक्शन इज गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नाउ पहले एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते, देखिए लिखा हुआ है, those aldehyde or ketone which have at least one alpha hydrogen, they will show this reaction. ठीक है, ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, this reaction is happen in presence of dilute alkali, dilute basic medium, that is NaOH और Na2CO3 और BaOH whole twice. इसमें से जो एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है वो NaOH से होता है, जो कीटोन का रिएक्शन होता है वो BaOH whole twice से होता है, Na2CO3 का आपके में नहीं है। ठीक है, नाउ सी, ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है एंड ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है दोनों साइड, और उस पे जो हाइड्रोजन है दोनों अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें फंक्शनल ग्रुप ये है, इसके पास अल्फा कार्बन है ही नहीं, क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन से जो कार्बन अटैच होता है वो अल्फा कार्बन, और जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। इसमें आते हैं बेंजल डिहाइड में, इसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बन ये है CHO, CHO जिस कार्बन से अटैच है वो ये है, मतलब ये कार्बन जहाँ पे ये अटैच है ये कार्बन अल्फा कार्बन है, बट इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि आपको पता है बेंजीन रिंग में हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है और एक हाइड्रोजन हट करके ही CHO आया है। सो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सो इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, और इसके पास अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो ये जरूरी नहीं है कि अल्फा कार्बन हो तो अल्फा हाइड्रोजन हो, ऐसा जरूरी नहीं है, याद रखिएगा। सो ये दोनों एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, ये दोनों कैनिजारो रिएक्शन करेंगे। ठीक है, अब एल्डोल कंडेंसेशन में ऑलवेज टू पार्टिकल्स आर रिएक्ट विथ ईच अदर, दो पार्टिकल रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो ऑन दिस बेसिस
aldol condensation is of two type: simple aldol condensation, or another name is self aldol condensation. Second is क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो एक है सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन और सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, और दूसरा है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए ध्यान से। व्हेन द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इज टेक्स प्लेस between two molecule of same aldehyde or ketone which having alpha hydrogen। ठीक है, जब एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन, हम आपको पहले बता दें कि इन एल्डोल कंडेंसेशन टू पार्टिकल्स आर रिएक्ट विथ ईच अदर, टू मॉलिक्यूल्स आर रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, बाई कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज होता है। सो टू पार्टिकल्स आर रिएक्ट विथ ईच अदर, बट व्हेन द बोथ पार्टिकल मतलब दो पार्टिकल मिल करके रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। अब कंडीशन ये है कि दीज बोथ आर सेम एस एस और बोथ आर डिफरेंट। इफ बोथ द पार्टिकल आर सेम which are having alpha hydrogen undergo aldol condensation reaction, then that is called self aldol condensation और simple aldol condensation। तब उसको कहते हैं self aldol condensation और simple aldol। and when the two particles of aldehyde and ketone are different which are having alpha hydrogen, उनके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है लेकिन वो दोनों अलग अलग हैं, देन दैट इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तब उसको कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। दोनों में दूसरा डिफरेंस क्या है? सेकंड डिफरेंस, बाय सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन वी विल गेट अ सिंगल प्रोडक्ट, हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा। and by cross aldol condensation we will get a mixture of 4 product, हमको 4 प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा। कैसे वो हम देखेंगे, अभी कल आपको डिफरेंस बता रहे हैं। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल एल्डोल और सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन? पहला तो इंफॉर्मेशन है कि दोनों में सिमिलरिटी क्या है, बोथ विल सोन बाय दोज एल्डिहाइड और कीटोन व्हिच आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। डिफरेंस क्या है, simple aldol or self aldol condensation is shown by those aldehyde or ketone when the two molecules of same aldehyde or ketone having alpha hydrogen undergo aldol condensation, then that is called simple aldol condensation or self aldol condensation। This condensation reaction will produce only one product, and when two different two molecule of different aldehyde or ketone with alpha hydrogen, ठीक है, are undergo aldol condensation, then form, ठीक है, 4 product, a mixture of 4 product, this is called cross aldol condensation। क्रॉस में 4 प्रोडक्ट बनता है, सिंपल में 1 प्रोडक्ट बनता है। नाउ अब देखेंगे होगा क्या, रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, सो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन है कि क्रॉस एल्डोल है, पहले आपको ये पता करना है। तो सिंपल एल्डोल है कि क्रॉस एल्डोल है, दोनों पार्टिकल को देखिए, ये है पार्टिकल CH3CHO, ये है पार्टिकल CH3CHO, ये भी CH3CHO, ये भी CH3CHO, मतलब दोनों सेम पार्टिकल हैं। If both the aldehyde or ketone are similar, then that is simple aldol, मतलब ये simple aldol है। होगा क्या aldol कंडेंसेशन में, ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो दो पार्टिकल हैं, ठीक है, इसमें से एक पार्टिकल का फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा दूसरे पार्टिकल का अल्फा हाइड्रोजन। एक पार्टिकल का फंक्शनल ग्रुप दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन, रिमेंबर दिस, दो पार्टिकल में से एक का फंक्शनल ग्रुप दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप
डबल बॉन्डेड है। ये एक तरह से एडिशन रिएक्शन है, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्डेड है। सो फंक्शनल ग्रुप में सी डबल बॉन्ड ओ का एक बॉन्ड ब्रेक होगा। जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आ जाएगा एंड दिस विल बिकम्स निगेटिव, कार्बन विल बिकम्स पॉजिटिव। नाउ सेकेंड एल्डिहाइड पार्टिकल या कीटोन पार्टिकल जो है, इसका अल्फा हाइड्रोजन, केवल अल्फा, कोई और नहीं। ये मैं नहीं कर रहा हूं कि फर्स्ट कार्बन, आई एम नॉट सेइंग द लास्ट कार्बन, आई एम नॉट सेइंग द टर्मिनल कार्बन, आई एम सेइंग अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, this hydrogen will be going to be broken down, so H will get the positive charge, CH2 and rest part will get the negative charge. So as usual, positive will go at negative and negative will go at पॉजिटिव, जैसा एरो दिखा रहा है। तो क्या बनेगा, सी एच, यहाँ पे भी थोड़ा सा गलत है, सी एच थ्री रहेगा, सी एच टू नहीं रहेगा, सी एच थ्री रहेगा। फिर उसके बाद प्रोडक्ट में आपको दिखाता हूँ, ये सी एच थ्री रहेगा ना, यहाँ पे फिर उसके सी एच थ्री के बाद क्या है, सी एच, सी एच ये है, ओ पर एच आ गया, सो ओ एच बन गया। देखिए ब्लैक और ग्रीन को कंबाइन कर रहा है, ग्रीन पार्ट इसका है, ब्लैक पार्ट इसका है, और जो बाकी बचा था सी एच टू सी एच ओ, वो कार्बन से आके अटैच हुआ। सो ये कार्बन से अटैच होकर के सी एच टू सी एच ओ, ये एक ब्लैक से लिया है, एक ग्रीन से लिया है, जस्ट वन मिस्टेक है, सी एच टू लिखा गया, यहाँ पे सी एच थ्री रहेगा, ठीक है। इसका अल्फा हाइड्रोजन निकल के यहाँ अटैच हुआ, इसकी वैलेंसी फ्री हुई, ये आके कार्बन से अटैच हो गया, फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट इज कंटेनिंग एल्कोहल ग्रुप एज वेल एज एल्डिहाइड ग्रुप। इस प्रोडक्ट में एल्कोहल ग्रुप भी है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है। आउट ऑफ दीज टू फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप इज मेन फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप जो होगा वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। सो मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसको नाम दिया अल्फा कार्बन, और वो कार्बन जिस कार्बन से अटैच है उसको दिया बीटा कार्बन। सो इसका नाम हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप, तो एल्डिहाइड हो गया, और हाइड्रोक्सी साइड चेन हो गया एल्कोहल ग्रुप, सो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसका नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, कॉमन नेम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। आईयूपीएससी नेम तो आपका 1 2 नंबर लग के ऑल लग के लगेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एंड इट कंटेन द aldehyde and alcohol both the group, that's why it is also called aldol. Ald is showing aldehyde group, all is showing alcohol group, so aldol, aldol, the product is aldol. This is intermediate product. Now if it will be heated strongly, जब इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं ये एल्डोल, देन हीट करने पे देन इट अंडरगो कंडेंसेशन रिएक्शन, वाटर मॉलिक्यूल निकलना भी है, कंडेंसेशन रिएक्शन और इलिमिनेशन रिएक्शन, इसको या तो कंडेंसेशन कहेंगे या तो इलिमिनेशन कहेंगे। कंडेंसेशन या इलिमिनेशन रिएक्शन में कौन सा इलिमिनेशन होगा, सो नाउ सी आई इन्फॉर्म्ड इन द फर्स्ट चैप्टर कि इलिमिनेशन रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप, अल्फा इलिमिनेशन and beta elimination. In your whole syllabus, everywhere beta elimination is there. Only this is the place where alpha elimination is there. यही एक ऐसा प्लेस है जहां अल्फा इलिमिनेशन हो रहा है। कैसे, देखिए, in this in this aldol, when aldol is heated, then hydrogen will be removed from alpha carbon and OH will be removed from beta carbon.
and double bond will be formed between alpha and beta. So अल्फा से H निकल गया, बीटा से OH निकल गया और डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, इसको कॉमनली कह सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, मतलब एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा और बीटा के बीच अनसैचुरेशन मतलब कि डबल बॉन्ड है। और इट इज आल्सो कॉल्ड इनल, इनल भी कहते हैं, इनल, इन डबल बॉन्ड अल एल्डिहाइड, इनल। बुक में इनल भी लिखा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी लिखा है, एंड दिस एलिमिनेशन इज अल्फा एलिमिनेशन बिकॉज इन दिस हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है अल्फा कार्बन से। सो ओवरऑल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कंप्लीट्स इन टू स्टेप। In first step, the two aldehyde of ketone having alpha hydrogen are react with each other to form an addition complex. एडिशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एडिशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? एक एल्डिहाइड या कीटोन का फंक्शनल ग्रुप डबल से सिंगल में कन्वर्ट होगा और दूसरे एल्डिहाइड कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन उसके अल्फा कार्बन से निकल के ऑक्सीजन के पास आएगा और रेस्ट पार्ट कार्बन से अटैच होगा। सो इट फॉर्म एल्डोल। एल्डोल नाम का मतलब क्या है? दैट कंपाउंड विच इज हैविंग एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल बोथ द ग्रुप, वो कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप हैं। एंड दिस एल्डोल विल अंडरगो कंडेंसेशन और अल्फा एलिमिनेशन बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग। इस एल्डोल को हीट करेंगे तो इसमें आप या तो कहिए बीटा एलिमिनेशन, सॉरी नॉट बीटा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन बिकॉज हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम अल्फा। ठीक है, एंड ऑल्सो कॉल्ड कंडेंसेशन, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, इसीलिए इसका फुल नेम है एल्डोल कंडेंसेशन। एक और नाम आप दे सकते हैं डिहाइड्रेशन, सेकेंड स्टेप को। सो एल्डोल, पहले एल्डोल बना, फिर कंडेंसेशन से क्या बनेगा? इनल। फाइनल प्रोडक्ट विल बी इनल, मींस एल्डिहाइड विच इज हैविंग डबल बॉन्ड, इनल। सो दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल, केवल एक प्रोडक्ट मिला, बोथ आर सिमिलर। यही प्रोसेस जो आपको बताया जा रहा है कोई डिफिकल्ट नहीं है, यही प्रोसेस एक का फंक्शनल ग्रुप, एक का अल्फा हाइड्रोजन, यही प्रोसेस सब जगह होगा सारे एल्डोल में, बस प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। नाउ देखिए इसमें कीटोन का कर रहा है CH3CO CH3 CH3CO CH3, so both are same, it means it is also सिंपल एल्डोल और सेल्फ एल्डोल। इसका मतलब ये भी सिंपल एल्डोल या सेल्फ एल्डोल है। मैंने आपको बताया है, दिखाया है कि ये बेसिक मीडियम में होता है, इसलिए यहाँ पे देखिए OH माइनस लिखा हुआ है। और नहीं तो कीटोन का कराना है तो आप BaOH होल ट्वाइस ले लीजिए, एल्डिहाइड का कराना है NaOH ले लीजिए, नहीं तो केवल OH माइनस लिख दीजिए। नाउ सो प्रोसेस क्या होगा? फिर से वही प्रोसेस फॉलो करिए। C डबल बॉन्ड O में से एक बॉन्ड टूटेगा और दूसरे पार्टिकल का अल्फा कार्बन जो है उसका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा प्लस माइनस, और जो बाकी बचा पार्ट है वो कार्बन से अटैच होगा। अटैच कर दीजिए CH3 CH3, एक नीचे CH3 नीचे CH3, C सिंगल बॉन्ड O हो गया, सिंगल बॉन्ड O उस पे आके H अटैच हो गया, OH बन गया। आगे क्या अटैच होगा? CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। आपको ब्लैक और ग्रीन वैसे ही दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन, ये इसीलिए कहा गया है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, कोई और हाइड्रोजन नहीं, जिसके पास नहीं होगा वो ये रिएक्शन नहीं करेगा। इन दिस प्रोसेस, मतलब इसमें जिसमें कीटोन का रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है कीटोन और OH ऑल,
तो इसको एल्डोल नहीं कहते हैं, कीटोल। मैंने आपको बताया था। एक है केटल, एक है कीटोल। कीटोल यहाँ बन रहा है, और केटल कहाँ बना था? रिएक्शन विथ एल्कोहल, रिएक्शन विथ एल्कोहल। देखिए ये केटल बना था, रिएक्शन विथ एल्कोहल, साइक्लिक। ठीक है। और यहाँ जो बन रहा है एल्डोल कंडेंसेशन में, दैट इज कीटोल। वहां पे एल है, यहाँ पे ओ एल है। वो केटल, ये कीटोल, दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा। अब इसको हीट करेंगे। सो एल्कोहल और कीटोन में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? कीटोन है। तो इससे जो कार्बन अटैच है वो अल्फा, और ये बीटा। इधर वाला भी अल्फा होगा, लेकिन इधर नहीं जाएगा क्योंकि इसके पास बीटा नहीं है। तो इलिमिनेशन इधर से होगा, अल्फा से एच, बीटा से ओ एच, डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा। एंड दिस विल बी कॉल्ड इनोन। जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा इनोन। कीटोन से इनोन बनेगा, डबल बॉन्ड और कीटोन। और एल्डिहाइड से, ठीक है, इनल बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट एल्डोल कंडेंसेशन का। दोनों को एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। प्रोडक्ट उसमें कीटोल और इनोन बनेगा, इसमें एल्डोल और इनल बनेगा। ये सेल्फ एल्डोल हमारा खत्म हुआ, अभी क्रॉस एल्डोल की बात नहीं की है। ठीक है, अभी क्रॉस एल्डोल में 4 प्रोडक्ट बनेगा। ये सेल्फ का ही दिखा रहा है, सिंपल का ही दिखा रहा है, क्रॉस वाला यहाँ पे। सो दिस वी विल डिस्कस टुमारो। सो सिंपल एल्डोल एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, वही प्रोसेस क्रॉस में हम कल डिस्कस करेंगे। एंड